Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Manisha Gupta, your ACC tutor, and I'm here again back with a new video again on the long question from the topic performance measurement and control. And this is for all the ACC PM student, right? And the question name is Jungle Co. And the question has been asked in September 2016 at him. As I said in the previous video as well, while solving the question, you should read the first requirement, what the requirement is asking, so that we can keep those requirement in our mind and look for the information related to it, right, in the scenario or background provided by the provided in the exam. So here the question is asking you to discuss the financial as well as non-financial performance of Jungle Company for the year ending 31st August 2006, and there are 7 marks available for the calculation and 13 marks available for the discussion. So now your more focus should be on the discussion side of things because it carry heavy weightage in this particular question out of the 20. Okay. So this is the background. So let's read the background one by one as I have done this question previously as well. So just read this. I'm reading this question together with you guys and letting you to clarify how to approach this kind of question if you are getting in the exam as well. Okay. So question is Jungle Company is very successful multinational retail company. So it's very successful, and this is not which like something like the other company who have started recently. So ये एक already successfully established company है. So it has been selling a large range of household and electronic goods for some year. Okay, so obviously they have a variety of the product line which they are dealing with. 1 year ago, it began using a new supplier from the country of Slovak where the labor is very cheaper. See, here is the twist. If company is using the new supplier, so and also where there is labor is cheaper, that means you are using the cheaper labor, your cost will be lower, right? But the labor is cheaper, who might know how to work, so it might affect. I'm not pretty much sure now. Let's read this. We will read the scenario further, and then we will figure out. ठीक है? But what I mean to say, इस सेंटेंस से आपको कैसे सोचना होगा कि अगर सप्लायर चीपर है, ठीक है, अगर आई मीन सप्लायर न्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यू है, उस केस में क्या हो सकता है, देर माइट बी चांसेस ऑफ मेकिंग ए मिस्टेक, और अब हमारा क्वालिटी में भी क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पैक्ट हो सकती है क्योंकि प्रीवियसली कोई और सप्लायर था विच माइट बी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक सर्विस जो दे रहे थे वो एक कंसिस्टेंसी और बोलते हैं ना लाइक कांस्टेंट बेसिस में उस सर्विस का क्वालिटी भी मेंटेन था. बट जो कि न्यू सप्लायर यूज कर रहे, हो सकता है कि वो उससे बेटर सर्विस दे, अच्छा भी हो सकता है, या फिर उससे बुरा भी सर्विस दे और सेम लाइक द प्रीवियस वन, है ना. अच्छा देगा तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, कस्टमर का कंप्लेन वगैरह भी इंप्रूव हुआ होगा, ये सब भी देखेंगे. ठीक है, अगर बुरा हुआ हो तो यहाँ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है. और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से दे सेड द लेबर इज वेरी चीपर, मतलब हमारा कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम होगा. कॉस्ट कम होने का इट कुड बी वन ऑफ द रीजन. ओके, for many of its household goods in the 2004, Jungle Company has become a major provider of clouding computing service. So in 2004, Jungle Company also became a major provider of cloud computing service, investing heavily in the cloud technology. So अब जो हाउस होल्ड गुड था, इलेक्ट्रॉनिक गुड के साथ साथ ये कंपनी अब क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करी है एंड इस एरिया में उन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया है. ठीक है, सो ये न्यू रेवेन्यू आई मीन सोर्स हो गया कंपनी के लिए. अब जो कि हेविली इन्वेस्ट किया गया है, इन दैट केस हमारा कैश कम होगा, एसेट्स ज्यादा दिखेगा. एसेट्स ज्यादा दिखने का रीजन हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं इस टेक्नोलॉजी में. ठीक है, और रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग और वी आर गेटिंग द इनकम फ्रॉम द न्यू सोर्स. ठीक है, this service provider provide customer with a way of storing, accessing data and program over the internet rather than on their computers hard drives. Okay, that's perfect. Sorry. All Jungle Company customers have the option to sign up the
for the company Gold membership service which provide next day delivery on all orders in return for the annual service fee of 40. So company कस्टमर से 40 लेगी एनुअल सर्विस, और इस गोल्ड मेंबरशिप में क्या होगा, उनको जो डिलीवरी होगा आज के या तो कल के डेट में उनको अवेलेबल हो जाएगा. In September 2005, Jungle Company performed its own logistic company and took over the delivery of all its parcel instead of using the service of international delivery company. See, अब यहाँ पे क्या हो रही है, कंपनी अपना लॉजिस्टिक भी चेंज कर रही है. लॉजिस्टिक कहाँ पे, इन हाउस कर रही है. पहले आउट था, अब इन हो गया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो गया. और ये जो पहले वाला था इंटरनेशनल था. दैट मीन्स इट वाज द प्रीमियम क्वालिटी सर्विस विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द प्रीवियस कंपनी, है ना. अब उस लेवल का सर्विस ये जंगल को खुद से प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं, इट कुड बी द कंसर्न. ठीक है. अगेन अगर आपका कस्टमर कंप्लेन बढ़ा हुआ है, कस्टमर लो है, आपका रेवेन्यू डिक्लाइन है, दैट मीन्स आपका लॉजिस्टिक सर्विस में भी आपके अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और मे बी कस्टमर इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द इन हाउस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द जंगल कंपनी. ठीक है. सो यहाँ पे एक चीज और पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा, अब मे बी कहीं पे लिंक हो जाए. जो कि पहले इंटरनेशनल डिलीवरी कंपनी प्रोवाइड करती थी ये लॉजिस्टिक सर्विस which seems to be premium services for the customer, and now the Jungle company has been shifted to their like in-house services. हो सकता है कस्टमर एक्सेप्ट भी ना करे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है, वो देखेंगे हमारा फिगर्स कैसा इंक्रीजिंग ट्रेंड में और डिक्रीजिंग ट्रेंड में. Then we have, over the last year, there has been worldwide growth in the electronic goods market of 20%. So worldwide में अगर growth हुआ है, that means हमारा भी sales बड़ा होना चाहिए. नहीं हुआ तो मे बी अगेन यही हमारा कस्टमर कंप्लेन, ये कस्टमर का ये हमारा सर्विसेज अच्छा क्वालिटी नहीं होगा, ये सब रीजन हो सकता है. Average growth rate and gross profit margin for the cloud computing service provider have been 50% and 80% respectively in the last year. So ये gross margin की बात कर रहे हैं. Jungle company price have been remained stable year on year for the all sector of the business, with the price competitiveness being crucial to its continuing success as a leading global electronic retailer. See, इस क्वेश्चन में बोला कि प्राइस स्टेबल है. सो अगर रेवेन्यू अब इंक्रीज हो रहा है, देन वी विल नॉट डिस्कस कि इट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग द प्राइस और चेंजिंग द प्राइस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि आपका प्राइस स्टेबल है. दैट मीन्स एनी चेंज इन रेवेन्यू इज ड्यू टू द सोनली ड्यू टू द सेल्स वॉल्यूम. ठीक है. Then we have certain figures and facts like revenue का figure दिया for the last 2 years, cost of sales, gross profit, administrative expense, distribution expense and other operating expense. Then they calculated the net profit, and ये revenue का breakdown भी they have also provided. Breakdown of the cost of sales they also provided. Then administrative expense में what they said, included in this cost are the cost of running customer service department, 860,000 in 2005 and 1900 in 2006. This department deals with the customer complaints. So basically अब ये देखोगे कस्टमर का ये जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, मतलब it could be due to the more number of staff being added. और स्टाफ ऐड करने का रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि कस्टमर कंप्लेंट्स ये जो डिपार्टमेंट है ये कस्टमर के कंप्लेंट से डील कर रही है. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ कंप्लेंट ज्यादा हुआ होगा. ठीक है, लिंक कर रहे हो ना चीजों को. Then at the last they provided the non-financial fact and figures, and which could be used to discuss the non-financial performance of the Jungle company. So this is all about the scenario. It's for the 20 marks. I hope this is now clear. अगर आपको clear ना भी हो, आप एक बार वापस से पढ़ो, then analyze the things, and then you will find a chain and you can write in the flow. ठीक है. अब हमको यहाँ पे दोनों चीज डिस्कस करना है, फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल भी. और क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा उसके लिए सिर्फ 7 मार्क्स है, एंड डिस्कशन के पार्ट में देयर इज 13 मार्क्स अवेलेबल. ठीक है. सो आई हैव डन दिस क्वेश्चन फॉर यू. जस्ट I would suggest you guys should pause this video, give it try from your end, then come back to this video and learn how I have solved this question. तो नाउ मैंने क्या किया है, मैंने 1 by 1 डिस्कस किया. मैंने रेवेन्यू उठाया, रेवेन्यू का ब्रेकडाउन को भी उठाया, एंड इसको 1 by 1 डिस्कस किया लाइक परसेंटेज चेंज निकाल के, एंड लास्ट में भी टोटल का भी मैंने परसेंटेज निकाला है एज वेल एज न्यूमेरिकल फिगर्स, बोथ एब्सोल्यूट एज वेल एज रिलेटिव फिगर मैंने दोनों निकाला हुआ है. ठीक है. सो अगर रेवेन्यू की बात की जाए, ऑब्वियसली क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका प्राइस स्टेबल है. सो दैट मीन्स एनी चेंजेस इन रेवेन्यू आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट कुड बी ड्यू टू सोनली
सेल्स वॉल्यूम फिगर, ठीक है, बट प्राइस के वजह से नहीं आएगा। और अदर फैक्टर भी हो सकते हैं यहाँ पे, बट प्राइस के वजह से नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन क्लियरली मेंशन इट इज प्राइस हैज बीन रिमेन स्टेबल ईयर ऑन ईयर ऑल सेक्टर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। सो अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू की बात किया जाए, सो इन द 2006 वी हैव रेवेन्यू ऑफ 94,660 एंड वी इन 2005 वी हैव a revenue of 82,320. सो अगर परसेंटेज वाइज निकाला जाए वैल्यू, देयर इज 15% इंक्रीमेंट इन आवर रेवेन्यू। और एब्सोल्यूट ये नंबर के बेसिस में निकाला जाए तो 12,340 मैंने 30 कॉमन लिया है, सो दैट मीन्स 12.3 मिलियन से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। बट ये इंक्रीज डिक्रीज तो एग्जामिनर को भी दिखता है ना। वी शुड लाइक फाइंड द रीजन in the scenario provided. अगर रीजन नहीं है then you can write it by your own other point linking to the facts and figure provided in the question, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे वही चीज लिखा है, सिंस सिंगल कंपनी प्राइस हैज बीन रिमेन स्टेबल, रेवेन्यू इंक्रीज आर इंटायरली द रिजल्ट ऑफ हायर सेल्स वॉल्यूम व्हाइल रेवेन्यू डिक्रीज आर ड्यू टू द लोअर सेल्स वॉल्यूम। वो जो मैंने डिस्कस किया वो पार्ट है। अगर अब हम लोग वन बाई वन डिस्कस करते हैं, तो पहले हम लोग हाउस होल्ड से उठाते हैं। हाउस होल्ड गुड्स की अगर रेवेन्यू की बात की जाए, इट हैज बीन डिक्लाइन बाई 5%। अब ये रीजन क्या है, वो तो एग्जामिनर को भी दिख रहा है कि 5% से डिक्रीज हुआ है। एग्जामिनर वांट्स रीजन व्हाई, ठीक है। सो मैंने ये यहाँ पे क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम हाउस होल्ड गुड्स कैटेगरी फेल बाय 5%। तो वन पॉसिबल रीजन इज जंगल कंपनी स्विच टू द सप्लाई cheaper supply in Slovak, where labor cost may have led to reduce the product quality, lower labor cost, and this decline in the quality could have negatively affected the customer demand, resulting in the lower revenue. Other possible reason could be the showing a weak demand or strong competition in that particular area. So what I mean to say, क्वेश्चन में कहा गया था कि उन्होंने सप्लायर चेंज किया है। इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड, आई थिंक इट्स फर्स्ट वन, या इन द फर्स्ट वन दे सेड कि जो हाउस होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उनके लिए उन्होंने सप्लायर चेंज किया फ्रॉम द कंट्री ऑफ स्लोवाक, जहाँ पे लेबर चीपर है। अगर अब लेबर चीपर है तो दैट मीन्स, मैंने जैसे पहले ही बोला था, लेबर चीपर तो उनको काम करने का तरीका पता नहीं होगा। स्किल्ड होंगे तभी तो महंगा चार्ज करेंगे ना। सो काम करने का तरीका पता नहीं है तो व्हाट दे विल, उनके काम करने के तरीके से मे भी हो सकता है कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट में क्वालिटी इंपैक्ट आएगा। क्वालिटी इंपैक्ट आए तो क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, कस्टमर नाराज हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो स्टोर विजिट नहीं करेंगे, कंपनी का सामान ही नहीं लेंगे। वो नहीं लेंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू डिक्लाइन होगा, जो कि हमारे अभी के केस में हाउस होल्ड गुड्स की कैटेगरी में हुआ है। एंड मैंने वही चीज लिखा है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है अब इसका डिमांड कम हो गया, कंपटीशन बढ़ सकता है। हालांकि ऐसा कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में। इफ यू विल लुक एट दिस नंबर एंड फैक्ट्स प्रोवाइडेड, ऐसा कुछ मेंशन नहीं, जस्ट मैंने ये ऐड कर दिया। ये आपके ऊपर है, ये लिखो चाहे ना लिखो, बट यस ऊपर का पॉइंट इट्स वेरी कंपल्सरी एंड जो कि सिनेरियो से लिंक है, ठीक है। देन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात की जाए, इट इज इंक्रीजिंग बाय 28%, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज रीजन मेंशन किया था, दो दे हैव स्विच द सप्लायर, ठीक है। सप्लायर को स्विच करने के बावजूद भी ये रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो सकता है बोला, इन्होंने कहीं पे मेंशन किया था कि यहाँ पे ये रहा, over the last year there has been worldwide growth in the electronic market of 20%, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अगर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो मेरा भी तो रेवेन्यू इंक्रीज होना पड़ा उसी प्रोपोर्शन में। एंड दिस इज व्हाट आवर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैज बीन इंक्रीज बाय 28%। सो यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मार्केट इंक्रीज बाय 20% वर्ल्ड वाइड, जंगल कंपनी इंक्रीज इन दिस एरिया बाय 28%, मीनिंग दैट दे एक्सीड द एवरेज मार्केट गिवन द साइज ऑफ दिस देयर सेल्स। इट सीम्स जंगल कंपनी इज वेल एस्टैब्लिश्ड इन दिस मार्केट, एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जंगल कंपनी इज गेनिंग द मार्केट शेयर्स, ठीक है। सो ये हम लोग जस्ट इंक्रीमेंट तो हुआ, बट होने का रीजन भी खोज के एक्सप्लेन किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग तुम्हारा 90% से इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या हो सकता है, उन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया है। रिमेंबर इन द सेकेंड पैराग्राफ, आई थिंक नो इन द फर्स्ट पैराग्राफ, इन्वेस्टेड हेविली इन द क्लाउड टेक्नोलॉजी।
सो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम द क्लाउड कंप्यूटिंग हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली बाय 90% लार्जली ड्यू टू जंगल कंपनी heavily invested in this area which has strengthened its services offering to attract more customer for their services. ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है, कंपनी इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट से क्या हो सकता है, उनका सर्विस स्ट्रेंथ हुआ है, राइट। सो ये हम लोग ने इसका भी रीजन एक्सप्लेन किया। नाउ नेक्स्ट वन इज गोल्ड मेंबरशिप। गोल्ड मेंबरशिप की बात देखी जाए तो 30% से डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, 30% से डिक्लाइन हो रही है। सो एक और मैंने पॉइंट ऐड किया था यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट इटसेल्फ ग्रू बाय 50% which is likely to contribute significantly to jungle company 90% revenue growth in this area, suggesting that company not only benefited from the market expansion but also outperformed industry trend. So basically जो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग था, इसका मार्केट भी हमारा 50% से इंक्रीज हुआ है। सो 50% इंक्रीज मतलब कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होने का ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए कंपनी ने इंटरेस्ट से भी बेटर परफॉर्म किया, ये इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, देन ओके, अब हमारा क्या था, ओके गोल्ड वाला। सो रेवेन्यू फॉर द गोल्ड मेंबरशिप हैज फॉलन ड्रास्टिकली बाय 30%. दिस सीम्स टू बी ड्यू टू इंक्रीज इन द लेट डिलीवरी कॉस्ट बाय जंगल कंपनी टेकिंग डे ऑफ डिलीवरीज ऑन देयर ओन इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द एस्टैब्लिश्ड कंपनी। अभी जो रेवेन्यू जो इस गोल्ड मेंबरशिप की बात थी ना, ये सेकेंड पैराग्राफ में था, इन्होंने क्या बोला था कि कस्टमर को वो ऑप्शन दे रहे हैं कि 1 साल के लिए सर्विस के लिए $40 पे करने के लिए एंड दे विल गेट द डिलीवरी नेक्स्ट डे ऑन ऑल द ऑर्डर, ठीक है। बट अगर आप देखोगे कंपनी ने लॉजिस्टिक भी चेंज किया, कहाँ इंटरनेशनल सप्लायर था वो अब कंपनी इन हाउस बिल्ड कर रही है। हो सकता है कंपनी के पास वो स्किल वो एक्सपर्टाइज ना हो जो भी इंटरनेशनल डिलीवरी कंपनी के पास है, ठीक है। ये रीजन हो सकता है कंपनी का कस्टमर कंप्लेन भी बढ़ा हुआ है, सो विच इज सपोर्टिंग दिस पॉइंट एज वेल कि रेवेन्यू डिक्लाइन होने का रीजन ये है एंड उसके वजह से भी हमारा कंप्लेन बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज पार्ट फॉर द रेवेन्यू। मूविंग टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी ब्रेक डाउन लिया है, जो क्वेश्चन में दिया गया था उसका परसेंटेज निकाला हुआ है, ठीक है। सो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी देखोगे तो ये हमारा इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम एज कम्पेयर टू द 2005, ठीक है। सो अब मैं 1 by 1 डिस्कस कर रही हूँ। जैसे अब हाउस होल्ड की बात करूँ, हाउस होल्ड का हमारा चेंज हुआ है 90% से, ठीक है। सो 90% से चेंज हुआ है। अब वो तो सप्लायर, वो तो एग्जामिनर को भी दिख रहा है 90% से डिक्रीज हुआ है, बट वाई? So one of the reason for this could be that fact that Jungle Company began using a new supplier from Slovak where labor is very cheaper, they were driving their cost down. Yes, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कंपनी लेबर चीपर दूसरे कंट्री स्लोवाक से हायर किया गया। अब लेबर को तो कम पैसे देना पड़ेगा, कम पैसे देना मतलब हमारा कॉस्ट इस साल का कम होना, सो ये उस पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड देखोगे तो 26% से इंक्रीज हुआ है। हालांकि ये इंक्रीमेंट आपका सेल्स से अलाइन में, सेल्स भी आपका 28% है, आप 26% से कॉस्ट भी बढ़ा रहे हो, नॉट अ बिग इशू, दोनों एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैज इंक्रीज बाय 26%. दिस इज इन लाइन विद द इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ 28% इन द सेम कैटेगरी। ऑलराइट, अब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाए तो इसका कॉस्ट 168% से इंक्रीज हुआ है। और ये क्यों होगा? क्योंकि कंपनी ने हेविली इन्वेस्ट की हुई है इस एरिया में, ठीक है। सो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा है, द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इंक्रीज ग्रेटली बाय 168%. दिस इज to be expected as Jungle Company has heavily invested in this area to grow revenue which will also result in the higher cost. So उस रीजन की वजह से ये हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, बट इसमें क्या है ना कि हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रेवेन्यू आ रहा है वो 90% से मात्र इंक्रीज हुआ, बट कॉस्ट से 168% से इंक्रीज हुआ, डबल। एक पल के लिए देखा जाए तो डबल ही है, ठीक है। तो अब
एक ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये तो वन ऑफ द कॉस्ट है ना, हर एक साल तो कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी ना। सो वन ऑफ द कॉस्ट में भी अभी दिख रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगा, सेल्स कम आया, बट इन द कमिंग फ्यूचर हमारा सेल्स में भी हो सकता है ज़्यादा आएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। सो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, ये पार्ट हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन की बात की जाए तो वो हमारा इंक्रीमेंट में है, ठीक है, 65%। जस्ट अ सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में मैंने सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सप्लेन किया है, बट यू गाइस शुड गिव ए ट्राई फॉर द अदर वन एज वेल। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा जो मार्जिन है वो 65.80 से इंक्रीज हो रहा है, एंड 2005 की बात की जाए तो 75.80 था। सो यहाँ पे क्लाउड मार्जिन जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्जिन, ग्रॉस जीपी मार्जिन, ये इस साल 65 है, प्रीवियस ईयर 75 था, मतलब डिक्लाइन हो रहा है। एंड जो कि एक और चीज इन्होंने कहीं पे लिखा हुआ था यहाँ पे, एवरेज ग्रोथ रेट एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर द इस इंडस्ट्री का, सो जो कि 80% है, ठीक है। सो दैट मीन्स हम लोग फॉल हो रहे हैं। ये क्यों होगा? ऑब्वियसली जंगल कंपनी के लिए ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला मार्केट है, इट्स न्यू, यहाँ पे अभी स्टैब्लिश होने में कंपनी को टाइम लगेगा, और इन्होंने अभी हेविली इन्वेस्ट किया गया है इस एरिया में। सो यहाँ पे अभी हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, बट इन कमिंग फ्यूचर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द कॉस्ट, ठीक है। सो ये चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की एक्सपेंस की बात की जाए तो ये हमारा इंक्रीज हुआ है अगेन। सो मैंने इंक्रीज का रीज़न क्या लिखा है यहाँ पे देखोगे तो ब्रेक डाउन में उन्होंने बोला था कि इस कॉस्ट में एक कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है जिसका कॉस्ट भी उन्होंने मेंशन किया है, एंड कॉस्ट की परसेंटेज देखोगे तो इट्स वेरी हाई, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये एक रीजन हो सकता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अगेन अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है, बट थोड़ा से 2%, नॉट ए बिग डील, ठीक है। सो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैज actually increased by 2% only. This is surprising given that the jungle company has been dealing with the delivery in-house, which will usually result in the cost saving. So obviously कंपनी ने अभी लॉजिस्टिक्स चेंज किया है, पहले आउटसोर्सिंग करता था एंड बाहर से लेता था सर्विस, अब वो इन हाउस इस्टेब्लिश कर लिया। सो इन हाउस इस्टेब्लिश करने की वजह से हो सकता है कि कॉस्ट सस्ता पड़ रहा है, इसीलिए 2% अभी सिर्फ सेव हुआ, ठीक है। This indicates that decision was ineffective as it did not only increase the administrative cost due to the customer complaint but also failed to achieve any reduction in the distribution cost. So बेसिकली ये सेंटेंस में क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, जो उन्होंने डिसीजन लिया था लॉजिस्टिक्स चेंज करने का, उसके वजह से तो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कस्टमर कंप्लेन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इन हाउस सर्विस का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से कंप्लेन ज्यादा हो रही है, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन भी आई है एंड हमारा कंप्लेन भी ज्यादा हो रहा है। बट इसकी वजह से क्या मिला कंपनी को? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया तो बेनिफिट ओनली 2% का, कॉस्ट का तो इम्पैक्ट ज्यादा दिख रहा है ना। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये डिसीजन उतना इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट में मैंने निकाला यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी, ठीक है, और चेंजेस एज वेल। सो ओवरऑल द नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर जंगल कंपनी हैज इंक्रीज बाय अराउंड 6.2%. Overall, despite the operational issue jungle company faced, the company was still able to benefit from the higher margin revenue growth, resulting in the significant increase in the overall profitability. So obviously अब ये जो 6.2% इट्स लाइक कमी है ना, हमारा रेवेन्यू के अकॉर्डिंग तो कमी है। रेवेन्यू कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ था? इट्स आई थिंक 15 की कितना था, 15% से। बट ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल की बात करूँ कि कंपनी ने ऑपरेशन इश्यू भी है, लाइक कंप्लेन आ रही है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का भी कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, बट अगेन कंपनी हाई मार्जिन से बेनिफिटेड है, मतलब पॉजिटिव में है, और रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ है। सो उसके वजह से हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है 6.2% से बढ़ा है, ठीक है। अब ये तो हो गया फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स। अब नॉन फाइनेंशियल का भी एक फिगर हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे परसेंटेज चेंजेस मैंने साइड में कैलकुलेट कर लिया है। सो अगर कस्टमर कंप्लेन की देखा जाए तो कंप्लेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है सबसे पहले तो,
338%। और ये क्यों हुआ है आपको ही पता है, क्योंकि फर्स्ट थिंग उन्होंने एक चीपर लेबर को हायर किया था फ्रॉम स्लैब बैक, जिसके वजह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है क्वालिटी डिक्रीज हुआ और कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन हाई हुआ। ठीक है। और दूसरा रीजन हो सकता है कि कंपनी ने खुद का लॉजिस्टिक इस्टेब्लिश किया अभी रिसेंटली। खुद का लॉजिस्टिक इस्टेब्लिश करने से हो सकता है कंपनी मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल डिलीवरी कंपनी, जिसके वजह से कस्टमर नाराज हो रहे हैं, लेट डिलीवरीज हो रही है। परसेंटेज ऑफ लेट डिलीवरी भी आई थिंक बड़ा हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, या दे हैव प्रोवाइडेड, यहाँ पे यू कैन सी ये डिक्रीज हुआ है, तो अच्छा हुआ ना। 8 percentage of order delivered on time, सॉरी दिस इज नॉट लाइक लेट डिलीवरी का बात है। सो कितने परसेंट ऑर्डर टाइम में डिलीवर हो रहे हैं उसकी बात कर रही है। ठीक है, जो कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अगेन नॉट ए गुड थिंग। सो ये पार्ट हम लोग कस्टमर कंप्लेन के साइड ऑफ थिंग्स पे लिख सकते हैं। The percentage order on time and late goal delivery has decreased and increased respectively. मैंने ये दोनों डिस्कस एक ही बार कर रही हूँ। ठीक है, so this is likely due to the jungle company handling the delivery themselves now instead of using the experienced delivery company. Since they are new in this area, they will not be efficient as compared to the हमारा international customer डिलीवरी कंपनीज। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो कि जो इंटरनेशनल डिलीवरी कंपनी के पास जो एक्सपर्टाइज है, जो स्किल्स है, वो कंपनी के अंदर अभी एब्सेंस है। अब उसके वजह से ये हम लोग इशू फेस करें, यू कैन राइट दिस एज वेल। ठीक है, अब कस्टमर बेस की बात की जाए, सो इट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.5 मिलियन 10.1 मिलियन, जो परसेंटेज वाइज देखा है तो 9% का इंक्रीमेंट है। सो डिस्पाइट ऑफ कंपनी खुद की डिलीवरी सर्विस दे रही है, कंपनी स्टिल नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रही है, ये चीज ये प्रूव कर रहा है। ठीक है, अब ये रीजन क्या हो सकता है क्यों कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी का प्राइस क्या है, स्टेबल है। ठीक है, और ये जो क्लाउड मार्केट था वो हमारा क्लाउड बोले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का 20% से इंक्रीज भी किया था। सो दिस कुड बी द वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से ये कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ लॉजिस्टिक डिसीजन के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया है। So taking delivery in-house seems unsuccessful, service quality worsened, complaint rose up, gold membership satisfaction dropped, and this is damaging the jungle company reputation, may reduce the customer loyalty in the future. So basically जो ये कंपनी ने लॉजिस्टिक्स चेंज किया उसके बारे में मैंने ये बात किया है कि ऑब्वियसली कंपनी ने जो डिलीवरी इन हाउस डिलीवरी लेने की बात की थी वो अनसक्सेसफुल रहा है देखा जाए तो, बिकॉज की क्वालिटी भी डिक्रीज हो रहा है। क्वालिटी डिक्रीज की वजह से नंबर ऑफ कस्टमर में कंप्लेन भी देखो ज़्यादा है। नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेन ज़्यादा है तो इसका मतलब ज़्यादा लोग चाहिए हैंडल करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा ये जो कॉस्ट था कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब इसका इंक्रीमेंट की वजह से हमारा कस्टमर का एक लॉयल्टी, कंपनी का रेपुटेशन भी इम्पैक्ट आ रही है। ये चीज मैंने ये पार्ट में डिस्कस किया। सो दिस इज फॉर लाइक ओवरऑल 20 मार्क्स क्वेश्चन। सो आई होप यू गाइज हैव नाउ अंडरस्टूड हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो अगेन आपके पास कोई कंफ्यूजन है, क्वेरीज है, टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज।